ऑन है इसलिए मेरी आवाज आपको आ रही है। Tejas, if it's not happening, it's okay. I can start one without it. None? Ready? Tejas, are you ready? आप सबको मेरा नमस्कार। एक बड़ा व्यथित करने वाला, परेशान करने वाला, चिंतित करने वाला एक वाकया हुआ है तमिलनाडु में। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, पहले आप 2 वीडियो देखिए। ये वीडियो जो है ये उस दिन का है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपनी मेंबरशिप ड्राइव कोयंबटूर में कर रही थी और उसके तहत वहां पर लोगों को आमंत्रित किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत करने के लिए। जो शख्स अब अगले बोलने जा रहे हैं वो श्री श्रीनिवासन है, श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के वहां के ओनर हैं और वो जीएसटी पर अपनी व्यथा बता रहे हैं। अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्ट नीचे आपको दिखाई देगी वीडियो पर। प्लीज प्ले द वीडियो विद ऑडियो। Do you have the audio? Please play the second video after this. Thank you. I will first speak in English and then make a statement in Hindi. What you're seeing here are 2 videos. The first video is of Mr. Srinivasan. He is the owner of Sri Annapurna Sweets of Coimbatore. There was a meeting organized by the BJP. As far as its membership drive is concerned, people from all walks of life, including businesses in Coimbatore, were invited to meet Finance Minister Nirmala Sitharaman. In the first video,
And for the benefit of those who do not understand the beautiful Tamil language, like I don't do, I will just simply tell you what he says. He says, I have a sweet shop. The GST rates are so different for each category that sometimes it makes the person calculating the input credit, an income tax official, difficult to calculate. The computer gets stuck. He then goes on to say, sweet attracts a GST of 5%. On savories, the GST is 12%. For a plain bun, there is no GST. But a bun with cream, the GST is 18%. And the computer gets stuck sometimes. There is laughter in that room. There is humor. The finance minister doesn't seem to mind at all herself. She also indulges in that humor. But within the next 24 hours, the owner of Sri Annapurna Sweets is summoned in the presence of the finance minister and is made to profusely apologize. And he is not just made to apologize, a video is surreptitiously recorded, perhaps without even his consideration or consent. And that video is shared by the official handle of the Bharatiya Janata Party's Tamil Nadu unit. There are a few questions that we have, but before those questions, there are some very, very emphatic observations that we want to voice before you. This is a grave cause of concern. If citizens of this country, if businesses of this country, if people of this country are not going to be able to voice their concerns before public servants, how is governance and policy making going to happen? The price for asking a question, the price for making a suggestion, the price for appealing for a simple GST regime is humiliation, is intimidation, is essentially making you apologize, recording videos surreptitiously, and then putting it out in public domain by the ruling party. That's how drunk on power, that's how intoxicated on power the BJP is. We've all known of the Prime Minister's fragile ego, but Ms. Nirmala Sitharaman perhaps beats him heads down. The fact that she's the finance minister of this country, the fact that she was meeting businesses from Coimbatore, the fact that businesses from Coimbatore are supposed to voice concerns before her is a given. But instead of resolving their problems, the finance minister chooses to intimidate, chooses to threaten, chooses to shame, chooses to humiliate businesses of this country. Why? Because they are small, medium enterprises. Because they are not the Adanis of the world for whom you roll out the red carpet. I just want to simply put some facts before you. Because this is outright disrespect and complete arrogance of the ruling regime. The reality is that India's small and medium enterprises like Sri Annapurna have dealt with a body blow of demonetization, have dealt with a flawed GST, the cost of taxation has gone up, have dealt with tax terror, have dealt with police, have dealt with raids for no rhyme and reason. And these are the backbones of the Indian economy. The government chooses to intimidate small and medium enterprises, but actually rolls out the red carpet for big businesses. This very government chose to cut the corporate tax to the lows of 22%. They put over 4 lakh crore rupees in the pockets of India's rich billionaires, who did not create a single job, by the way. They give them tax exemptions, and they coax taxes out of you. A 67,000 crore money that 10 sick companies owed to public sector banks are bought by Adani at under 16,000 crore rupees, at over a 74% haircut. Adani buys companies. That's the loss incurred by India's public sector banks, 74%. And look at how small, medium enterprises, small businesses are being humiliated, disrespected, and intimidated.
I just want to put two figures before you and then I will make the statement in Hindi. In this country, corporate tax has traditionally been higher. The corporate tax collection has been higher because corporates make far more money than people like you and I do, who pay normal income tax. But guess what? The latest figures from the government of India tell us that income tax collections were 3.46 lakh crore rupees, whereas corporate tax collection was 2.10 lakh crore rupees. Much, much lower than income tax collections. When Manmohan Singh demitted office, corporate tax collection was 35% of all taxes collected. Today it is at 26%. Income tax was at 21% of all taxes collected. This is direct tax. It's now at 28%. The reality is that India's poorest, half of India which is poor, pays 64% of GST. And this is what the government is doing. Coaxing taxes out of you, intimidating, humiliating, disrespecting small businesses, making them bow before them, simply for asking questions that anybody in public life, anybody in public service should answer. I will make the very, very simple statement in Hindi now. ये जो वीडियो आपने देखे, इसमें से पहला वीडियो कोयम्बटूर का है, 11 सितंबर का है। 11 सितंबर को भाजपा ने अपनी मेंबरशिप ड्राइव के तहत लोगों को आमंत्रित किया था। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए। कोयम्बटूर के तमाम बिजनेस भी उसमें आए थे। उसमें से एक श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के वहां के ओनर श्री श्रीनिवासन जी थे। उन्होंने खड़े होकर अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि मेरी एक मिठाई की दुकान है, वहां पर मीठे पर 5%, नमकीन पर 12%, प्लेन बन पर 0%, और अगर क्रीम लगाते हो तो उस बन पर 18% जीएसटी लगता है। तो कई बार तो कस्टमर बन अलग और क्रीम अलग ले लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कौन सा जीएसटी लगाएं। और उन्होंने यह भी कहा कि इतने जटिल के जीएसटी के चलते हमारा कंप्यूटर भी फंस जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट करने वाले इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को भी नहीं समझ में आता है, तो जीएसटी की रेट को थोड़ा सरल कर दीजिए। ये एक छोटे मध्यम लघु उद्योगपति हैं और वो ये बात, ये व्यथा अपनी इस देश के वित्त मंत्री के सामने कह रहे थे। वित्त मंत्री, ऐसा प्रतीत हुआ वहां पर कि उनको कोई इससे आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कुछ हंसी मजाक भी किया। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको अलग से बुलाया जाता है श्री अन्नपूर्णा जी के मालिक को, और उनसे माफी मंगवाई जाती है। चोरी से पीछे से उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है। मुझे नहीं पता उनका कंसेंट, उनकी सहमति भी इसमें थी कि नहीं थी। उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उस वीडियो को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर डाला। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश की वित्त मंत्री के सामने अगर किसी ने अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द, अपने कारोबार की दिक्कत बताई, तो बजाय उसको सुलझाने के उन्होंने उस व्यक्ति को डराना, धमकाना, उससे माफी मंगाना ज्यादा जरूरी समझा। इंग्लिश में एक टर्म होता है इंटॉक्सिकेटेड ऑन पावर। ये सत्ता का गंदा नशा, ये सत्ता के गंदे नशे में चूर्ण अगर हरकत नहीं है तो ये और क्या है। और ये वो सरकार कर रही है जिसने छोटे लघु मध्यम उद्योगों की पीठ तोड़कर रख दी है। ये वो उद्योग है जिनके पास कोई चारा नहीं है। इन पर आपने नोटबंदी का कहर ढाया, इन पर आपने टैक्स टेरर बरसाया, इनके ऊपर आप रेड करते हैं, इनके ऊपर आपने गलत जीएसटी लागू करके इनके कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन को भी बढ़ाया। और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए तो आप लाल कालीन बिछाते हैं, उनके लिए तो आप जी हजूरी में सर झुका के खड़े रहते हैं, बाहें खोलकर खड़े रहते हैं। अडानी हो, फिर देखिए 10 कंपनी खरीदनी थी अडानी जी को, उनकी कुछ आर्थिक समस्याएं थी, सरकारी बैंकों में उनका 67,000 करोड़ बकाया था, खरीदनी मोदी जी के मित्र अडानी को थी। बैंकों ने कहा कोई बात नहीं, डिस्काउंट पर अडानी जी ने खरीद ली। 67,000 करोड़ देना था, 16,000 करोड़ से कम दिया। 74% नुकसान इस देश के सरकार की बैंकों ने झेला, चूना लगाया गया उनको। इस देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया। आपका अभी भी 30% बना हुआ है और उसके ऊपर सेस वगैरह लगाकर। इस देश में इनकम टैक्स कलेक्शन अधिकतर
कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से कम रहता है, क्योंकि कॉर्पोरेट आपसे कई गुना ज्यादा पैसा बनाते हैं। लेकिन मोदी जी ने उसको भी खत्म कर दिया। 3.5 लाख करोड़ करीब करीब इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ इस साल, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रही हूं, और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन करीब 2.1 लाख करोड़, 2,10,000 करोड़ हुआ। जो इनकम टैक्स 21% होता था पूरे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, वो अब 28% हो गया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स मनमोहन सिंह जी के जमाने में पूरे टैक्स कलेक्शन का, डायरेक्ट टैक्स का 35% होता था, वो घट के 26% हो गया है। असलियत यह है कि इस देश के सबसे गरीब लोग, करीब आधे भारतीय, 64% जीएसटी अदा कर रहे हैं। तो आप पर टैक्स की कहर है, टैक्स की मार छोटे लघु मध्यम उद्योगों पर है। लेकिन अगर वो अपनी व्यथा बताएंगे, अगर वो अपनी दिक्कत बताएंगे, तो उनके साथ ये किया जाएगा। तमिलनाडु अपने लोगों का, अपने प्रदेश का, अपनी संस्कृति का यह अपमान नहीं सहेगा। और इसीलिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी पेरियार की लैंड में आज तक खड़ी नहीं हो पाई है, क्योंकि आप तिरस्कृत करते हैं लोगों को। और ये तिरस्कार, ये अपमान इस देश का कोई राज्य नहीं सहेगा। ये इज्जत है आपकी लोगों के मन में। आप एक छोटे लघु मध्यम उद्योगपति को बुलाते हैं क्योंकि उसने अपनी व्यथा बता दी, और उससे माफी मंगवाते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उस वीडियो को आपके हैंडल, आपके लीडर चलाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। There is a reason why the BJP will never be able to make an inroad in the land of Periyar. Because this is nothing but absolute insult, disrespect of Tamil Nadu, of its hard-working people, of hard-working industrialists who build their businesses with sweat, with equity, and with everything that they've had in them. निर्मला सीतारमण को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका घमंड जो है वो इस तरह का। उनसे महंगाई की बात करिए तो वो कहती है मैं लहसुन प्याज ही नहीं खाती। वो डेटॉल से लोगों का मुंह साफ करने की बात करती है। ये किस तरह की भाषा और किस तरह के बयान है। और अब जो उनकी हरकत है, नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझकर उनको वित्त मंत्री बनाया है। इस सरकार का हर मंत्री घमंड और अहंकार में इतना चूर्ण है, और बार बार उसका ब्यौरा आपको देखने को मिलता है। और इसके जनक खुद नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन तमिलनाडु के साथ, तमिलनाडु के लोगों के साथ, तमिलनाडु के कारोबारी के साथ जो आपने किया है वो अस्वीकार है। What you have done to an industrialist from Tamil Nadu being drunk and intoxicated on power is absolutely unacceptable. We are not going to accept this. We demand an apology from Ms. Sitaraman. We demand an apology from the BJP. And we also demand the BJP Tamil Nadu unit to come forward and say who recorded that video and why was it uploaded. And is there a price that we have to pay for asking questions of this government, for seeking help, for giving suggestions? That's the moot point. Thank you. अगर आपके इस पर कुछ सवाल हो तो उसका स्वागत है। इस पर सवाल नहीं है आप लोगों का। आप लोग भी जब अगली बार बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके सवाल पूछिएगा तो आपको अलग से बुलाया जाएगा, आपके पीछे एक कैमरा फिट किया जाएगा, आपको उसकी ये हंसी की बात नहीं है, आपको उसकी जानकारी नहीं होगी, आपसे माफी मंगवाई जाएगी, और फिर बीजेपी की इकाई उस हैंडल को लगाएगी, अपने हैंडल पर लगाएगी, और आपकी तौहीन करेगी, आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगी, आपके साथ इस तरह की ऐसे पेश आएगी। शायद हम लोग को तब समझ में आए। Who has been vocal? Congress has been vocal on the flawed GST, and Rahul Gandhi has also raised this issue on several occasions. And now this video has come in that format, that how a businessman was made to apologize to the finance minister. And so what are the proper demands, ma'am? Only apology from the BJP and the minister, or from the entire BJP leadership on this issue? I mean, our demand is simple. The finance minister cannot be so intoxicated on power that she gets this man to apologize because he raised a few points on your flawed GST. There is a reason why Rahul Gandhi chooses, and we all choose to call it the Gabbar Singh tax. The reality is that GST and a flawed GST has broken the backbone of India's businesses. Who's accountable for the fact that at an annual level, 13,000 MSMEs are shutting down every year in India? Who bore the brunt of demonetization? Who's bearing the brunt of tax terror? Who's bearing the brunt for the fact that there is a raid of income tax because there is a problem in your GST filing? The poor man is only saying that it makes input tax credit calculation tough also. Our computers get stuck.
instead of finding solutions, instead of simplifying the GST, what Ms. Sitharaman has done is absolutely disgusting, and it's actually playing with the pride of our people, especially the ones in Tamil Nadu. जी मैं इसी पर ही रहना चाहती हूँ। सरकार पर ही मैम कहा है, इनका एक जीएसटी पर सवाल है। हाँ, जी। बेंगलुरु में जो है कुछ दिन पहले जीएसटी के अधिकारियों ने एक व्यापारी का अपहरण किया, जबरन वसूली की, लगभग 1.5 करोड़ रुपए जीएसटी के अधिकारियों ने वसूले। उसके बाद उन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। आज उन चारों अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। तो गब्बर सिंह टैक्स कहना इसका मतलब सही है ना? जीएसटी को, जीएसटी के नाम पर जो आतंक मचा रखा है छोटे लघु मध्यम उद्योगों को, उसी की बात राहुल जी करते हैं, उसी की बात हम करते हैं, उसी की बात कॉर्पोरेट इंडिया कर रही है। जो छोटे लघु मध्यम उद्योग हैं उनके साथ आप सौतेला व्यवहार करते हैं, और जो बड़े बड़े आपके मित्र हैं जिनसे गलबैया करके मोदी जी फोटो खिंचाने से थकते नहीं हैं, उनके लिए आप लाल कालीन लाल कारपेट बिछाकर खड़े हैं, उनके लिए जी हजूरी में खड़े हैं, इत्र भी छिड़कते हैं उनके ऊपर। ये कौन सा ये क्यों इस देश के कारोबारियों को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है? तो हमने क्या गलत कहा? मैम सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए एक टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर निकलना चाहिए। I don't want to comment on this per se, but I will only say, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है, जिस तरह से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया। एक आदमी जीएसटी की शिकायत कर रहा है, एक आदमी जीएसटी के बारे में आपसे बता रहा है, अपनी दिक्कतों को बयां कर रहा है, उससे आप माफी मंगवा रहे हैं। तो इसमें क्या संदेह है कि आप अपनी ईडी, अपनी सीबीआई, अपने इनकम टैक्स का दुरुपयोग करते हैं, लगातार करते आ रहे हैं 10 सालों से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। ऐसे तमाम लोग हैं जो बिना ट्रायल के इस देश के जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उनकी शक्लें नहीं पसंद है। इसके बारे में क्या किया जाएगा? कोर्टों को भी एक नजीर बनानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हस्तक्षेप अच्छा है, लेकिन इस देश की न्यायपालिका को भी नजीर बनानी चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सालों से लोग पड़े हुए हैं कोर्ट में, 4-4, 5-5 साल हो गए। क्यों पड़े हुए हैं कोर्ट पे? क्योंकि उनकी शक्लें नहीं पसंद है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। कौन सा लॉ कहता है कि आपको बेल नहीं मिल सकती है? तो मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से डराया धमकाया जाता है, जिस तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में के जगह प्रतिशोध की राजनीति की जाती है, उसका परिणाम है कि 10 सालों से इन्होंने दुरुपयोग किया, लेकिन लोगों ने आपको जवाब दिया उसका। बड़े ढोल बाजे ताशे के साथ आप 400 पे चले थे, 240 पर लाकर खड़ा कर दिया है, बैसाखियों के सहारे हैं आप। लोगों ने आपको उसका जवाब दिया, आप अभी भी ये बात नहीं समझ रहे। विनाश काले विपरीत बुद्धि शास्त्रों में ऐसे ही नहीं कहा गया। धन्यवाद बहुत बहुत।